Good morning, student. We have started chapter number 10 circles. Now, let here in part number 6, one more property of circle we are going to discuss, that is angle subtended by an arc of a circle. We have in previous lecture we have studied an angle subtended by line segment or a chord, that is we have studied. Now let we are going to discuss angle subtended by an arc. And before starting this lecture, just remember that angle subtended by an arc of a circle, it is similar to the properties of chord, that is an angle subtended by an a chord and an arc. दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है आर्क है वो ली गई है. सो लेट वी जस्ट study, we just learn angle subtended by an arc of circle. For that, if two chords of a circle are equal, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent and conversely. What here given that? If two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent and conversely. Means if two arcs of the given circle are equal, then their corresponding chords are equal. So यहाँ पे क्या कि अगर दो कोई ऐसी chord हो वो सेम हो सर्कल में, और दो अलग सर्कल की अलग अलग chord है वो दोनों सेम है, तो उनके हिसाब से जो उसका आर्क होगे, उसके जो आर्क्स होंगे, मेजर आर्क और जो माइनर आर्क है दोनों के सेम होंगे. उसका उल्टा ले, अगर दोनों आर्क सेम है तो उसके दोनों कोड भी कैसे होंगे? सेम होंगे. इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल. So by this simple way, just you can you can see in the figure, as you can see that AB and CD given that two arc, given two chords AB and CD, given that AB and CD are two chords and both are same. So the arc of CD, that is this one is small arc, this is that is a minor arc, and there is major arc, as well as for AB that is this is a minor arc and this is major arc. So by this way we can say that if both chords are same, then minor arc of both chords and major arc of both chords are same. So let just remember this property. Now let congruent arcs or equal arcs of a circle subtend equal angle at the center. Next thing, that if there is given the given two arcs are same or equal, then the angles subtended by these arcs are also same. So in the figure you can see that here given one an arc PQ. So if there is given any other arc, as you can see here, then both arcs subtends angle at center, then the angle will be equal. So these two properties that we are going to discuss here, and by using these we just take some more properties here. Let theorem number 10.8, the angle subtended by an arc at the center is double
the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर ऐसी कोई आर्क है, उसने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है, बनाया है, एंगल बनाया है, तो वो एंगल जो है, सेंटर पे जो एंगल है, तो उसके अलावा उस आर्क ने किसी सर्कल पर किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे एंगल बनाया है, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो किससे डबल होगा, तो कि जो बाकी के भाग में, बाकी के पार्ट में जो एंगल बनाया होगा उससे। सो बाय दिस वे यू कैन सी हियर सम फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पी क्यू है, आर्क पी क्यू, उसने यहाँ पे एक सेंटर पे एंगल ड्रॉ किया है, ए भी एंगल बनाया और ऐसे भी एंगल बन सकता है। तो उसके अलावा जो सेंटर के अलावा जो पी क्यू है वो किसी सर्कल के किसी भी पार्ट में अगर एंगल बनाए, तो ए जो एंगल है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू वो डबल होगा किससे, तो के पी ए क्यू से, पी ए क्यू से डबल होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पी क्यू है, पी ओ क्यू है, वो 180 हो जाएगा। कितना? 180 हो जाएगा। और पी क्यू यहाँ पे है जो इसका डायमीटर है। तो हमें पता है कि इन किसी भी हाफ और किसी भी सेमी सर्कल में अगर एंगल ड्रॉ करें तो वो कितना होगा, 90 का होगा। कितना होगा? 90 का होगा। तो वो यहाँ पे जो एंगल है वो 180 का है, वही कितना हो जाएगा, 90 का, मीन से राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पर भी जो पी ओ क्यू है वो डबल देन पी ए क्यू। तो याद रखना है, अगर ऐसी आर्क है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, दैट इज पी ओ क्यू, is double the angle subtended by it any point on the remaining part, as you can see here। so ये जो पी ए क्यू है वो डबल होगा किससे, तो कि पी ए क्यू से। पी ओ क्यू है वो डबल होगा किससे, तो कि पी ए क्यू से। अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे डबल होता है। सो लेट प्रूफ दैट वी आर गोइंग टू गिवन हियर। Given an arc PQ of a circle subtending angles POQ at the center O and PAQ at the point A on the remaining part of the circle, as you can see in the figure, we need to prove that angle POQ, that is angle subtended at center, is equal to double of angle PAQ, that is angle subtended at any point of circle. So let for that just we draw the figure one more time. Consider the three different cases as given in the figure. So you can see that here three figures given that in three cases. So let one more time we just draw the figure. Now let us begin by joining AO and extending it to a point B। हम एक रे ड्रॉ करेंगे, ए ओ, यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे। तो ए ओ को ज्वाइन कर देंगे, उसको हम बी और ओ से बी की तरफ उसे एक्सटेंड करेंगे, और जो पॉइंट यहाँ पे हो गया उसे बी कहेंगे। सभी फिगर में ऐसे हम उसे ड्रॉ कर देंगे। इन ऑल केसेस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, ए क्यू। हमें पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ओ क्यू है, वो ए ओ क्यू है, उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल बी ओ क्यू है वो इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई एंगल ट्रायंगल दिया गया हो, तो वो यहाँ पे जो इसका ए एक्सटीरियर और ए बी, तो ए जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है,
अब एक्सटीरियर एंगल को हमें पता है उसकी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे होता है वो जो इसके इंटीरियर इंटीरियर जो दो एंगल होते हैं उसका सम होता है। मीन्स ए जो होता है ए ओ बी, जो एंगल बी ओ ए ले लो, या तो उसका सम कितना होता है, तो कि वो बाकी के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम होता है। तो ये जो फिगर है इस तरह से आप जो है ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, तो ये दोनों के दोनों एंगल है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। सभी फिगर में ऐसा मिलेगा हमें, क्योंकि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है इसीलिए। बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। Also in triangle OAQ, in triangle you can see that OA is equal to OQ। क्यों? क्योंकि वो रेडियस ऑफ अ सर्कल, दोनों रेडियस है, तो OA is equal to OQ हम लिख सकते हैं। फिगर पे ध्यान रखना। Therefore एंगल OAQ is equal to एंगल OQA। क्यों? हम थियरम नंबर 7.5 में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा कोई मिले कि रेडियस है, तो रेडियस के साथ जो कोड है, कोड पे जो एंगल बनाएंगे दोनों के दोनों एंगल कैसे होगी, सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। दिस गिव्स बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू। क्यों? इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है ना, बी ओ क्यू है वो 2 टाइम जो है हम लिख सकते हैं। और इसी हिसाब से सिमिलरली बी ओ पी, एंगल बी ओ पी है उसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एंगल ओ ए पी। कैसे लिखते हैं, 2 एंगल ओ ए पी। अब दोनों का सम ले लेते हैं, बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू, दैट इज इन दोनों का सम। तो ए दोनों का सम लेंगे, ये दोनों का सम क्या आ जाएगा, पी ओ क्यू। इन द फिगर यू कैन सी दैट पी ओ क्यू, और इन दोनों का सम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एंगल पी ए क्यू। दैट इज for the case 3 we where PQ is the measure R is replaced by reflex an angle POQ that is equal to 2 times angle PAQ। तो ऐसे ही हम उसे प्रूव कर सकते हैं। रिमार्क, अब सपोज वी join point P and Q and form a chord PQ in the above figure, then angle PAQ is also called the angle formed in the segment PAQP। PAQP, तो यहाँ पे जो एंगल है वो Q, यहाँ पे शुरुआत होती है PAQP, ऐसा जो एंगल है वो बनेगा। इन द थ्योरम 10.8 can be any point on the remaining part of circle, so if you take any other point C on the remaining part of the circle you have, अगर C को हम ऐसे लिख डालें तो हमें पता है कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे पी सी क्यू जो एंगल बनेगा वो भी किससे सबटेंड किया है, तो कि पी क्यू ने बनाया है। तो मीन्स यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हम लिख सकते हैं, दैट इज एंगल पी ओ क्यू इज डबल देन पी ए क्यू एंड ऑल्सो डबल देन पी सी क्यू। मीन्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी सी क्यू एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। दैट इज पी सी क्यू एंड पी ए क्यू दोनों क्या हो गए, इक्वल। मीन्स ये क्या बताता है कि अगर कोई भी आर्क हो वो बाकी के भाग में जो उसके अलावा कोई भी एक आर्क में, मेजर आर्क में होना चाहिए या माइनर आर्क में होना चाहिए, तो दोनों में जो एंगल बनाएंगे और दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। जब एक ही आर्क है वो 2 ऐसे एंगल बनाएंगे तो दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। बाय दिस वी कैन से दैट angles in the same segment of a
सर्कल आर इक्वल, जो यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दी फिगर। Again, let us discuss that case 2 of theorem separately. Here, angle PAQ is an angle in the segment which is semicircle. Also, angle PAQ is half of angle POQ, as we know that is half of 180 degree, as we know that POQ is of 180 degree, that is 90 degree. If you take any other point C on the semicircle, again you get angle PCQ is equal to 90 degree. Therefore, you find another property of the circle as angle is the semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. Always remember that. Angle in a semicircle is a right angle. अगर ऐसी कोई भी आर्क हो, कॉर्ड हो और वो सेमी सर्कल का डायमीटर हो, तो वो अगर किसी सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाए तो ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री का। दैट इज इट इज राइट एंगल। Therefore, theorem 10.10, if a line segment joining two points subtended equal angles at two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle. तो ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसी कोई एक लाइन सेगमेंट हो और वो कोई भी दो पॉइंट पे यहाँ पे जो ए बी लाइन सेगमेंट है, कोई भी दो पॉइंट पे अगर सेम एंगल ड्रॉ करे, कैसे सेम एंगल ड्रॉ करे, तो वो चारे के चारे जो पॉइंट है वो किस पे लाई करेंगे, तो क्या सर्कल पे लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे ए सी डी बी है और ए बी सी डी है, वो चारे के चारे पॉइंट एक सर्कल पे ड्रॉ लाई करेंगे। मीन्स दैट इज एनी लाइन्स एनी सेगमेंट draw same angle at any 2 points, draw any same angle or equal angle at any 2 points, then these 4 points are lying on the any circle. You can see the truth of this result as follow in the figure, as AB is a line segment which subtended equal angles at 2 points C and D, that is angle ACB is equal to angle ADB. To show that the points ABCD lie on the circle, let us draw a circle through the points ACB. Suppose it does not passes through the points D, then it will intersect AD at point say E or E dash. If point ACE and B lie on a circle, angle ACB is equal to angle AEB, क्योंकि हमें पता है अगर AB है वो लाइन आर्क है, तो वो यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं एंगल ACB is equal to एंगल AEB, but it is given that angle ACB is equal to angle ADB, that is therefore AEB is equal to ADB. So यहाँ पे जो है वो डी पर ही यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। इन होमवर्क देर इज गिवन सम एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज नंबर 10.5, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. By using these all properties, you can just solve that example given or question given in exercise 10.5. There is a question number 1, 2 and 3. Solve it by yourself.